Okay, so in today's class we will go for the compound interest. So I'm going to share the screen. So can you see the screen? स्क्रीन नजर आ हाँ रहा है? ओके, सो आज का टॉपिक है हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट. ग्रेड 7 में आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, राइट? हाँ हाँ ठीक है, अब देखिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है. What is a compound interest? We will do by one example. Okay. हाँ Before going further, can you tell me what is the formula for simple interest? P into R into T by 100 And what is the P here? X. P into R into T upon 100. This is the formula for simple interest. So P is what? P is known as principal. P is what? Principal. Principal. What is principal? What is principal? The money which we borrow. The money which we borrow, right? हाँ So if you are borrowing some money from the bank, so bank is basically what the bank is doing. Bank is providing the loan, money loan. right? Loan in the short form, or in the other language we can say whatever the money we are borrowing, it is known as what? It's known as loan. Principal. Loan. So the amount which you take from the bank, that is loan, and that is known as principal, right? हाँ Now they are saying rate. So this is known as rate of interest, correct? हाँ So rate of interest means the percent at which we need to pay the money, money. or you can say the rate is means at what percent they will charge the money, right? हाँ And T is what? T is time. time, for how much time they have taken, right? So हाँ in the rate can be per annum. What is PA? PA means per 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 annum. year. Per annum means per year. Per annum means per Per year. year. It can be also half yearly. It can be also what? Half Half yearly. yearly. It can be also monthly. It can be also quarterly. What do you mean by quarter? How many months Oh, makes one quarter? 1 quarter. 4. नहीं 3. 3 months makes one quarter. 3 months make one 1 quarter. quarter. So if you make a note, you can note it down. 1 quarter is 3 months, right? हाँ So rate can be quarterly, half yearly, monthly, and the time also in the same way, half yearly, quarterly, monthly, like that. So I will come one by one. So initially in the most of the question, you will find that the rate is given in which form? The rate is given in the form of per annum. Mostly the cases we consider per annum means yearly, right? But it depends on the question, what the question is given. Is that clear with you? हाँ Any problem? नहीं. Okay. Now, why we give SI and CI? So SI is what? It's a fee. It's what? Interest is P. what? Interest is a fee.
बिकॉज सपोज आप एक एग्जांपल लो कि आपने बैंक से 1000 रुपए 1000 रुपीज लोन के लिए लिया। क्या लिया? 1000 1000। लोन के तौर पे लिया, राइट? हाँ। तो बैंक को कितने टाइम के लिए लिया हमने? तो हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि हमने एग्जाम्पल ले रहे हैं 3 इयर्स के लिए लिया। कितने टाइम के लिए लिया हमने? 3 years। 3 इयर्स के लिए लिया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 10% पर एनम। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? 10% 10% पर per annum। एनम। अब देखिए इंटरेस्ट क्या होता है? बेसिकली इंटरेस्ट होता है कि फी हो गया, एक तरीके का क्या हुआ? फीस, जो कि बैंक हमसे चार्ज करेगा, राइट? बैंक वाला हमारे हमारे फैमिली मेंबर तो है नहीं, करेक्ट? वो 1000 रुपीज देगा और 3 साल के बाद वो 1000 रुपीज ही वापस लेगा। वो तो बोलेगा ना कि आपने मुझसे पैसे लिए तो आप मुझे कुछ पैसे एज अ फीस के तौर पे दो, चार्ज। हाँ। मेरा चार्ज हुआ इतना, आपको मैंने पैसे दिए तो चार्ज हुआ, वो आप मुझे चार्ज दो, उसको कहते हैं इंटरेस्ट, राइट? हाँ। इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं। इंटरेस्ट कितने टाइप के होते हैं? दो दो टाइप। टाइप। एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, याद रखिएगा। सेविंग अकाउंट्स के बारे में सुना है आपने? हाँ। क्या होता है वो? हम लोग पैसा बैंक में जमा करते हैं, राइट? हाँ। मतलब पर्सन, बैंक उसका पैसा देता है। अब बैंक उसका पैसा देता है, तो वो पैसा किस हिसाब से देता है? वो पैसा जो सेविंग अकाउंट पर पैसा मिलता है हाँ। वो सिंपल इंटरेस्ट पर मिलता है। किस पे मिलता है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। या आपने फिक्स डिपॉजिट, एफडी, एफडी का फुल फॉर्म क्या हुआ? फिक्स फिक्स डिपॉजिट। डिपॉजिट। वो जो पैसा बैंक हमको देता है वो सिंपल इंटरेस्ट पर देता है। और बैंक जो हमसे पैसा लेता है, लोन, तो लोन पे जो चार्ज होता है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर लेता है। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों बैंक कंपाउंड इंटरेस्ट से हमसे लेता है पैसे, और जब उसको देना होता है तो वो सिंपल इंटरेस्ट में क्यों देता है पैसा, अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो प्रिंसिपल कितना हो गया? 1000 रुपीज, टाइम हो गया 3 इयर्स, रेट हो गया 10%। ओके, अभी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा कि कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। आई एम गोइंग विद द बेसिक्स, ओके, एंड देन आई विल टेल यू द फॉर्मूला सो यू कैन डायरेक्टली कैलकुलेट इट। इज इट ओके? हाँ। सो नाउ देखिए, आपको क्वेश्चन में पी जो है वो दिया हुआ है 1000, राइट? टाइम इसमें भी हमने 3 इयर्स का लिया, और रेट जो है हमने 10% पर एनम माना। कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं। अब देखिए इसमें जब आपने 1000 रुपीज ले लिया, राइट, हाँ। तो फर्स्ट ईयर, मैंने देखिए 1 ईयर नहीं लिखा है, मैंने क्या लिखा है? फर्स्ट ईयर। मतलब अगर मान लीजिए आपने जनवरी 2020 में बैंक से पैसा लिया, ठीक है, तो ईयर 2020 में बैंक आपसे कितना चार्ज करेगा? तो बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा फॉर द फर्स्ट ईयर। I1 मींस फॉर द फर्स्ट ईयर बैंक चार्ज करेगा आपसे, यहां पर मुझे पी हो गया, रेट जो है वो 10%, और टाइम कितना लिखूं? 1 साल के लिए मैं काउंट कर रहा हूं तो 1 लिखूंगा मैं। 1। हाँ। तो कितना रुपया चार्ज करेगा? 100 रुपीज। 100 रुपीज। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? 1100। नहीं। ओके, फिर सेकेंड ईयर जब हम आते हैं,
मतलब बैंक 2021 में कहता है कि अगेन आपसे इंटरेस्ट लिया, तो बैंक ने बोला कि 1000 रुपीज लिया था, 10% ये और 100, तो यहाँ पर अगेन टाइम कितना हो गया 1, क्योंकि 1 साल का पीरियड है ना। हाँ तो फिर बैंक बोला कि 100 रुपए फिर आपको देगा, ठीक है। उसी हाँ तरीके से थर्ड ईयर जब आते हैं तो बैंक आपको कहता है कि ठीक है भाई, आपने 1000 रुपए जमा किए, तो 1 साल के लिए, और तीसरे साल में भी आपको बैंक 100 रुपए देगा, करेक्ट। तो हाँ। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? टोटल इंटरेस्ट 1300। 1300 इंटरेस्ट 1300 हो गया। नहीं, इंटरेस्ट 300। इंटरेस्ट बिकम्स 300 रुपीज, एंड अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट अमाउंट पेएबल, 1300। तो 1300 प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट बिकम्स 1300 रुपीज। सिंपल और इंटरेस्ट। एसआई का यही आया है। यस, ऐसा इज दिस, राइट। हाँ। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट में चलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सेम चीज, आपको बैंक ने पैसे दिए थे, कितने? 1000 रुपीज। हाँ टाइम बोला 3 साल बाद देना, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला 10% पर एनम के हिसाब से है। क्या है रेट? 10% पर एनम के हिसाब से। पर ना। अब देखिए इसमें क्या होता है। फॉर द फर्स्ट ईयर सेम, आपने जनवरी 2020 में बैंक से पैसा लिया, ठीक है। तो फॉर हाँ फर्स्ट ईयर बैंक से आपने कितना पैसा लिया था? 1000 रुपीज। तो बैंक बोला 1000 कि 1000 रुपीज पे तुमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, राइट। तो हम हाँ इंटरेस्ट निकालते हैं, तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर विल बिकम हाउ मच? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। टाइम यहाँ देखिए मैंने 1 लिखा है, 3 नहीं लिखा है, ध्यान दीजिए, ठीक है। हाँ क्योंकि हम 1 साल के लिए बात करते हैं, 1 साल के लिए टाइम हो जाएगा 1, राइट। कितना हो गया? हाँ 100 रुपया हुआ। हाँ। 100 रुपया। अब बैंक कहता है कि 2020, मतलब जनवरी 2021 जब आएगा, राइट, हाँ। जब हम कैलकुलेट करने जाएंगे सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट, किस चीज का? सेकेंड सेकेंड ईयर ईयर। का इंटरेस्ट। तो नाउ अब देखिए, अब अमाउंट क्या प्रिंसिपल क्या बन जाएगा? बैंक कहता है कि 1000 रुपए तुमने हमसे लिया था पहले, ठीक है। तो हाँ 2020 दिसंबर में तुमको 100 रुपया पे करना था, राइट। लेकिन तुमने तो हाँ। पे नहीं किया पैसा, तो ये 100 रुपया नहीं। तो मेरा बैंक का पैसा है ना। हाँ। तुमने पे किया? नहीं किया पे। तो बैंक कहती है कि हम इस पर भी चार्ज करेंगे, हम इस पर भी क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। चार्ज करेंगे, क्योंकि ये भी अब सेकेंड ईयर के लिए ये पैसा जो है वो भी चार्जेबल हो गया। तो अब बताइए, जब चार्ज इस पर भी चार्ज करना शुरू कर देगा तो हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर में? 1100। यस, सो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर बिकम्स 1100 रुपीज। तो हम यहां लिखते हैं 1100 टाइम्स 10 टाइम्स 1/100, ये कितना हो गया? ये इसमें भी 100। ईयर वन ही होगा। क्या? इसमें भी ईयर वन ही होगा। तो 1 साल के लिए ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना हाँ हम, तो 1 साल के दूसरे साल के लिए पैसा निकाल रहे हैं, 1 साल में एक ही लिखेंगे ना, 12 महीने होते हैं, हाँ करेक्ट। अब देखिए, हाँ। अब जब हम दिसंबर 2021 में पहुंचे तो हम्म 1100 रुपया पहले हो था, और 110 110 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज हो गया, ठीक है। तो हाँ जब आप तीसरे ईयर में पहुंचे, तीसरे ईयर कब पहुंचे? जनवरी 2022। तो बैंक क्या कहता है कि पहले से तो तुम्हारे पास 1100 है, 110 ये भी हो गया, तुमने कुछ रुपया तो दिया नहीं मुझको, तो हम इस पर भी चार्ज करेंगे। क्या करेंगे हम इस पर चार्ज। भी चार्ज करेंगे। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा फॉर द थर्ड ईयर?
1210. यस, तो अगर मैं यहाँ लिखूं प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, so 1100 plus 110 it becomes 1210 rupees. तो मैं लिख सकता हूँ 1210 times 10 times 1 upon 100, ये कितना हो जाएगा? 121 रुपीज हो जाएगा। हाँ, अब देखिए, बैंक ने पहले साल 100 रुपए लिए, दूसरे साल कितना रुपया चार्ज किया? 121, 110, और तीसरे साल कितना चार्ज किया? 121. यहाँ पर देखिए तो हर साल बराबर इंटरेस्ट दे रहा है, राइट? हाँ, लेकिन अगर कंपाउंड में बात करें तो बराबर इंटरेस्ट ले रहा है क्या? बढ़ाते जा नहीं, रहा है, बढ़ाते जा रहा है। क्यों बढ़ते जा रहा है? क्योंकि दे आर क्योंकि चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट। दे आर चार्जिंग व्हाट? इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑन द इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा यहाँ पे? टोटल इंटरेस्ट becomes 100 plus 110 plus 121. 1331. इंटरेस्ट 1000 कहां से हो जाएगा? नहीं, इंटरेस्ट बोल रहे हैं। हाँ, तो क्या इंटरेस्ट हो जाएगा 331. 331 will become the interest, right? And हाँ, टोटल अमाउंट पेबल कितना हो जाएगा? तो हमारा 1000 रुपीज एड, 1331. करेक्ट। तो अब देखिए मैं इसको दूसरे तरीके से दिखाता हूं। पहले हमने लिया 1000 रुपए, राइट? तो हाँ, एक साल बाद इसके लिए चार्ज किया उसने 100 रुपए, राइट? हाँ, तो टोटल हो गया कितना? 1100 रुपया, करेक्ट? हाँ, दूसरे साल जब आता है तो बैंक कहता है कि भैया अब 1100 रुपए पर आपको चार्ज करेंगे हम, तो इसका चार्ज 10% और निकाल दीजिए, तो 110 रुपया हो गया। तो टोटल कितना हो गया एंड ऑफ द सेकेंड ईयर? 1210 रुपीज देना पड़ेगा मुझे। तो अब 1210 रुपीज देना पड़ेगा। तो तीसरे साल अगर मैं जाता हूं तो इसके लिए 10% चार्ज फिर देना पड़ेगा। तो अगर आप ये एरो देखो तो ये क्या हो जाएगा? ये इंटरेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों को ऐड करते चले जाओ तो इंटरेस्ट हो जाएगा, राइट? करेक्ट। और अगर आप ये वाला एरो देखो तो ये अमाउंट हो जाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो इसको ऐड करके 1331 रुपीज, देखिए ये आ रहा है ये वाला ऐसे। हाँ, तो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट का टोटल इंटरेस्ट, और यहाँ पे टोटल अमाउंट हो जाएगा। हाँ, अमाउंट क्लियर है? यस सर। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये था विदाउट फॉर्मूला। क्या था? विदाउट फॉर्मूला. विदाउट फॉर्मूला। अब सेम प्रॉब्लम मैं फॉर्मूला से सॉल्व करूंगा। सेम प्रॉब्लम क्या करूंगा मैं? फॉर्मूला। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट अगर मैं सेम प्रॉब्लम लेता हूं फिर से, तो P is equals to 1000 rupees, time is 3 years and the rate of interest is 10% per annum. तो अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूं तो इस केस में अगर मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट इधर और कंपाउंड इंटरेस्ट लिख रहा हूं, ठीक है? फॉर्मूला बेस्ड। सो फॉर्मूला बेस्ड अगर मुझे लिखना है तो मैं सिंपली लिख सकता हूँ SI इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो अगर मुझे लिखना है तो P हो गया यहाँ 1000 टाइम्स R इज 10 और टाइम 3 इयर्स ले ले हम। देखिए ये 300 रुपया देगा, राइट? सो ये हो गया हमारा इंटरेस्ट, और टोटल अमाउंट हो जाएगा फिर इस केस में, टोटल अमाउंट हो गया 1000 plus 300, so it becomes 1300 rupees. Now in compound interest, remember that we have formula A is equals to P 1 plus R upon 100 power n. What do we have?
फिर से बताइए ना amount। मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, पढ़िए। A इज इक्वल्स टू अमाउंट, P इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, R जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, हाँ और N जो बोलते हैं वो टाइम को बोलते हैं, टाइम पीरियड। हाँ ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल टाइम्स 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N। हाँ क्लियर है? हाँ ये फॉर्मूला होता है किसका? ये फॉर्मूला होता है अमाउंट का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम? तो हमको मालूम है कि इस साइड से अमाउंट माइनस इज कर इक्वल्स देंगे। टू प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। ये मालूम है ना हाँ मुझे? तो यहाँ देखिए, हाँ तो मैं हाँ लिख सकता हूँ यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। हाँ तो ये फॉर्मूला हो गया, राइट? तो अब देखिए सेम क्वेश्चन को मैं हाँ फॉर्मूला से लिखता हूँ। तो फॉर्मूला में a इज इक्वल्स टू, पीछे जो बात कर रहे हैं उनको बोलिए थोड़ा कम बात करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 1000 1 प्लस 10 अपॉन 100 पावर 3। क्या लिखा हमने? पावर 3। सो ये हो गया 1000, और इसको आप देखो तो हम इसको लिख सकते हैं 110 अपॉन 100 पावर 3। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? हाँ ये मालूम हुआ कैसे हुआ? ये सिंपल हाँ 1 प्लस R बाई 100 था, तो मैंने पुटअप कर दिया 1 प्लस 10 अपॉन 100। एलसीएम इसके नीचे क्या आएगा? 1 आएगा, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 100। तो यहाँ पे हाँ लिख सकते हैं हम 100 प्लस 10, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच? 110 बाई 100। 100। हाँ अब देखिए, अब कुछ नहीं करना है, अब 1000, या ये रफ था, ये क्या था हमारा? रफ। रफ था। 1000 टाइम्स 110 अपॉन 100 क्या है पावर में? 3 है ना? तो हाँ हम इसको 3 बार मल्टीप्लाई क्यूब कर देंगे। तो क्यूब करेंगे तो आप देखो, ये दो जीरोस और खत्म हो गए, राइट? एक जीरो हाँ से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, और एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो अमाउंट क्या बच गया मेरे पास? 11 क्यूब। तो 11 क्यूब कितना होता है? 1331। 121। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो गया a माइनस पी। सो 1331 माइनस 1000, सो इट गिव्स मी 331 रुपीज। तो दोनों तरीके से सेम आ रहा है। हाँ कोई दिक्कत, कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। तो अब आप एक काम करो, आपको सिंपल इंटरेस्ट पता था पहले से? हाँ तो आप एक काम करो, आप ये वाला पेज नोट करो, दोनों साइड सिंपल कर इंटरेस्ट कर लिए नोट? हाँ यहाँ पे ये नोट कर लिया आपने? हाँ दोनों। अच्छा, नोट कर लिया आपने, ओके गुड। हम्म, ठीक है, तो अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। हाँ। अच्छा देखिए, एक चीज आपको बता दूं, दैट इज वेरी वेरी हाँ इंपॉर्टेंट फॉर यू। जब कहता है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्या बोलता है? कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो याद रखिए, अगर इफ टाइम इज गिवन इन ईयर्स, टाइम किस में है? ईयर्स में ईयर्स में। लिखा है, ठीक है? हाँ और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ईयर में है, पर एनम में है। क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट किस में है? पर एनम में। पर एनम में है, राइट? हाँ तो टाइम विल मल्टीप्लाई बाय 2। टाइम विल मल्टीप्लाई बाय 2। क्यों 2? क्योंकि एक साल में, बिकॉज in 1 year, in 1 year, how many half year you have?
How many half years you have? Two. Two, right? So हाँ. अगर मुझे बोला गया कि टाइम इज इक्वल्स टू 4 years, क्या बोला गया? टाइम इज 4 इक्वल्स years. टू 4 years. तो टाइम जो है वो 2 times of 4, that means it will become 8 half years. कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? नहीं. तो याद रखिएगा कि अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो टाइम को अगर ईयर में दिया हुआ है तो आप सीधे टाइम को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कोई दिक्कत नहीं. एंड द रेट विल डिवाइड बाय 2. रेट में हम क्या करेंगे? 2 Divide से हो जाएगा. डिवाइड कर देंगे. एज एग्जाम्पल के तौर पे if rate is given me as 10% per annum, right? तो हाँ. हम लिखेंगे therefore rate is 10/2, that is 5% half compounded half yearly. Compounded, समझ में आया? हाँ. अब ये बताइए कि अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली मैंने लिखा रेट के लिए डिवाइड बाय 2 कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? डिवाइड बाय 2. Divide by 2. तो अगर क्वार्टरली बोलूंगा तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 टाइम से. को डिवाइड कितने से करना पड़ेगा रेट को? 4 से. और अगर मंथली बोलूंगा तो? 12 से. गुड. अगर मंथली बोलेंगे तो 12 से. 12. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सारी चीजें कि अगर क्वार्टरली है इफ हाँ. टाइम इज इन years and the rate is in per annum, so time will multiply by 4 and rate will divide by 4. और अगर मंथली पूछ रहा है तो टाइम विल मल्टीप्लाई by 12 and the rate will Divide by 12. by 12. क्लियर है? हाँ. नोट कर लीजिए. हाँ. ओके. मैं एक प्रॉब्लम देने जा रहा हूँ. इस प्रॉब्लम को आप जो है विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करेंगे. क्या करेंगे? विदाउट Without formula. फॉर्मूला. जस्ट अ सेकंड. Can you see the question? हाँ. Find the compound interest on 25,000 for 3 years at 10% per annum compounded annually. हाँ, तो अब डू सॉल्व कीजिए विदाउट फॉर्मूला.
हो गया? हाँ हो रहा है। आप जो कीजिए, मैं एक सेकंड में आता हूँ। डन? हेलो, हाँ हाँ हो गया? हाँ। कितना आंसर आया? 29,725। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना निकला? 7,500। 7,500। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 7,500 निकला? हेलो, हाँ इंटरेस्ट पूछ रहा हूँ, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट 32,500। 32,000 कैसे हो जाएगा? क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में देखिए, कोई कह रहा है कि 25,000 प्रिंसिपल था। क्या था? 25। टाइम कितने के लिए था? 3 इयर्स के लिए टाइम था, राइट? और रेट ऑफ हाँ इंटरेस्ट कितना था? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% था, राइट? तो अगर आप देखो हाँ तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट अगर हमको निकालना है तो हम क्या लिखेंगे? 2,500। 25,000 टाइम्स 10 टाइम्स 1/100। तो ये कितना हो जाएगा? हो गया, राइट? सो हाँ सो प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा? 25,000 प्लस, 27,500। तो ये हो जाएगा 27,500 रुपीज। सो सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट अगर हम निकालें I2, तो 27,500 टाइम्स 10 टाइम्स 1। देखिए टाइम हम 1 लिखते हैं जब ऐसे करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 2750। सो प्रिंसिपल
आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, हाँ, principal for the third year will become here how much? 27500 plus 2750 rupees, ये भी रुपीस, तो ये कितना हो जाएगा? 3025, 3025। 30250, हाँ, 30250 रुपीस। सो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट हो गया हमारे पास अब I3 is equals to 30250 times 10 times 1 upon 100, तो ये हो जाएगा 3025, सॉरी 3025 रुपीज, करेक्ट। इन सबको आप ऐड कर दो 8275। तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे लिए? इंटरेस्ट, राइट। हाँ। क्लियर है? हम्म। हम्म, हाँ, वो हम टाइम में 3 ले लिए थे 1 के जब। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको भी विदाउट फॉर्मूला आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व इट। यहाँ पर देखिए कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो कंपाउंडेड हाफ हाँ, ईयरली है तो रेट और टाइम, लेकिन यहाँ पे ईयर में दिया है और पर एनम में है, तो क्या होगा? हाँ, चेंज होगा। हाँ। तो चेंज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए। और इंटरेस्ट 8/2, 4%। Interest is equal to R 5000, so 1 into 4, 500, 54 जा 100, 54 200, now $208 जा 408। एक सेकंड, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ओके, एक मिनट रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ।
हाँ, कितना बोला आंसर आपने? 408. 408। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। अब आप फॉर्मूला बेस्ड सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? मैं क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूँ। अब आप डायरेक्टली फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं। हाँ. अपलोडिंग द प्रॉब्लम। कैन यू सी द प्रॉब्लम? Without formula. नहीं, विद फॉर्मूला। अब विद फॉर्मूला बनाइए, बन जाएगा। तो यहाँ हाँ. क्या पूछ रहा है? पहले पूछा अमाउंट और फिर पूछा इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सॉल्व कीजिए फटाफट। तो से आ गई क्वेश्चन. हाँ. क्या बोल रहे हैं, बोलिए। नहीं कुछ. आज क्या है? आज गुरुवार है, ठीक है। अच्छा बना था, अच्छा बना है। हाँ, निकल गया आंसर. कितना है? 10,648. कंपाउंड 10,000. इंटरेस्ट? हाँ. कंपाउंड और इंटरेस्ट अमाउंट है 1,640. अमाउंट 1000 कैसे हो जाएगा? अमाउंट बोल रहे हैं कि पहले अमाउंट आया 10,648, राइट? हाँ. और इंटरेस्ट कितना आया? 2,648 हो जाएगा, करेक्ट? हाँ. हाँ. 2,648. ओके, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास। देखिए मैं दिखाता हूँ, लोडिंग। सी द प्रॉब्लम। हाँ. यहाँ पे देखिए, प्रिंसिपल तो ठीक है, कोई बात नहीं। प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमें? प्रिंसिपल इज 6,400. 6,400. टाइम इज 2 years. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 7.5. So we can write down 15/2. हाँ, हो जाएगा ये. ओके, तो अमाउंट जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे 6400, 1 प्लस 15/2 टाइम्स 100 पावर 2। हाँ. ठीक है, तो ये हाँ. कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6400, और ये बन जाएगा हमारे पास कितना? 215/200 हाँ. पावर 2। तो आप लिखिए 6400 टाइम्स 215/200 टाइम्स 215/200। 200. तो ये 200 200 कैंसल,
तो आप इसको लिख सकते हो, कितना लिख सकते हो, 32, करेक्ट। और दूसरा हाँ अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो 5 से अगर मैं डिवाइड देता हूँ इसको, तो ये आता है 40 और ये आता है कितना, 43, करेक्ट। 43। और हाँ अगेन मैं 5 से डिवाइड देता हूँ तो ये आ जाएगा अगेन 43 और ये हो जाएगा हमारे पास 20, 20। ठीक है। अगर फिर से मैं एक और बार डिवाइड देता हूँ तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 16। 16। तो हमारे पास नंबर आ गया 16 टाइम्स 43 टाइम्स 43 बाय 10। तो कितना हो जाएगा ये, 16 टाइम्स 43 टाइम्स 43 हो जाएगा 29584। कितना हो जाएगा, 2958। 29584 रुपीज डिवाइड बाय 10, तो ये हो गया 2958.4, ठीक है। कितना हो जाएगा, हाँ क्लियर है। 2958। हाँ नहीं, कुछ गड़बड़ हुआ है लगता है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, एक सेकेंड। एक मिनट रुक जाइए, मैं इरेजर से इरेज कर लेता हूँ, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। इसको हम लिख सकते हैं 6400 और ये 215 अपॉन 200 और ये 215 अपॉन 200। तो अगर मुझे डिवाइड देना है तो मैं सीधे इसको 43 और इसको लिखूंगा 40, इसको भी 43 और इसको भी लिख सकता हूँ 40, ठीक है। तो ये जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। हाँ अच्छा, हाँ अब तो जीरो जीरो सब कैंसिल हो गए और अब मैं इसको लिख सकता हूँ 16 चौक 64 और ये फिर ये 4, इतना आएगा, सॉरी इतना आएगा, मिस्टेक थी कहीं, ठीक है। वो 15 का स्क्वायर 225। हाँ 15 का स्क्वायर 225 होता है। हाँ, 15 का स्क्वायर 2025 होता है। तो 43 टाइम्स 43 टाइम्स 4 कितना आ जाएगा, यहाँ पर आप 215 लिखे हैं। कहाँ 215 लिखा है, तो 215 ही तो हुआ ना। हेलो, हाँ किसका स्क्वायर आप पूछ रहे हैं बताइए। 15 का। तो 15 का स्क्वायर मैं कहाँ कर रहा हूँ, मैं पहले इसको सॉल्व किया ना, पहले मैंने हाँ 200 यहाँ था, तो 200 हाँ टाइम्स ये कितना हो जाएगा 200, ऐड हाँ कर समझ दिया तो 215 आ गया, फिर इसका स्क्वायर किया ना मैंने बाद में, हाँ ठीक है। मैं 15 का हाँ स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ डायरेक्टली, और 15 का स्क्वायर कर भी नहीं सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये किस फॉर्मेट में, ए प्लस बी के फॉर्मेट में है। तो आंसर हो जाएगा 7396 अमाउंट, क्या हो जाएगा 7396 रुपीज, दिस इज द अमाउंट। सो कंपाउंड हाँ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको 7396 माइनस 6400 रुपीज कर देना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो इंटरेस्ट हो जाएगा 996 रुपीज, क्लियर है। हाँ नोट कर लीजिए फटाफट, मैं इरेज कर दूंगा। तो आपको क्लियर हुआ कैसे करना है। हाँ तो आप जो है कौन सा बुक है मैथ्स का, भी आर एस आ गया ना आपके पास, हाँ। हाँ नहीं दूसरा बुक आ गया है स्कूल में। कौन सा, एनसीईआरटी, आर्या कुछ करके है। हाँ आर्या डिपोर्ट पब्लिकेशन कुछ। अच्छा, ठीक है चलिए कोई नहीं।
तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कीजिए, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें जो मुझे आपको बताना है। ठीक है, तो आप जो ठीक। है कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना। ठीक है, हाँ, जितना हो सके। बोल दिए हैं। जितना हो सके उतना आप सॉल्व कीजिए इसमें से। ठीक है, हाँ, ठीक। और आपका क्लास जो है वो सैटरडे को मॉर्निंग में हम रखेंगे। ठीक, ठीक। हाँ। हाँ, आपके पास टाइम है, आप इतने में आप बना लो। हाँ, चले, हाँ। ठीक।